3 of the work and energy. Now, in this part 3, law of Andaroja of energy, that we are going to discuss. Energy can be transformed, from one form into another, but it neither created nor destroyed. मतलब क्या है? Energy neither created nor destroyed. It can transform from one form to another. Means, in short, we can say the total energy of the universe is constant. Total energy of the universe is constant. Another way of writing the total energy of universe is constant or conserved. Now we are going to discuss that different examples. Like for example, total energy is conserved. Like for example, you can take the matchstick. If you are going to just lighten it, what happens? How the transformation of energy is there? In this case, in the case of the matchstick, the chemical energy converts into the light energy and the sound energy. Right? There are so many examples. Like in case of the water falling from a certain dam, water is moving and rotating the turbine. तो water इतने ऊपर से potential energy है stored, वो convert क्या होगा? Potential energy of water converts into the kinetic energy of the water, and kinetic energy of the water converts into the kinetic energy of the turbine, and ultimately what happens? Due to the electromagnetic induction, electric current is generated or converted rather. So there are so many numerous examples of the transformation of energy there. So energy is neither created nor destroyed. It can convert from or transform from one form to another. Now come on to the point that how we are going to prove for the falling object. Like for example, if a particular object is falling freely, how we are going to prove it? Proof of, in case of the fall, freely falling object. Freely falling object. Now imagine one ball is there at A position. It is moving. It reaches here at B position, and again it reaches just near the ground, that is C position. This is what? Ball of mass M. A position, B position, C position, and ultimately here it is ground. So C position is just above the ground. Suppose this height from the ground of A position is h, and ball started moving, so it reaches the point B. Let this particular distance is x. It covers the distance x. So this distance is x minus x. Now we have to find the total energy at A position. Total energy at A position. Total energy, when we are talking about the total energy, जब हम total energy की बात करेंगे तो kinetic energy and potential energy plus kinetic energy, that is mechanical energy. तो potential energy क्या होता है? m into g into h plus ये क्या होता है? half m v square.
अब यहां पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर, ये हाइट तो है h, पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, बॉल इज नॉट येट स्टार्टेड, ए पोजीशन में जस्ट शुरू हुआ है, स्पीड 0, so ultimately as v is equal to 0 at a position, so it is m into g into h, for total energy at a, that is number 1. Now at point b we have to see what is the total energy. Let the body is falling and here the velocity is v. Now total energy at b, again here potential energy plus kinetic energy, potential energy and into g into h minus x. पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखिए ग्राउंड से कितना ऊपर है, ग्राउंड से h माइनस x ऊपर है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ना यहां पर v, यहां पर हम इस पोजीशन में v निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू जी h होता है, ये फॉर्मूला होता है थर्ड इक्वेशन। तो यहां पर इनिशियल v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, इसीलिए u0 इज इक्वल टू 2 इंटू g इंटू h की जगह x। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गिर रहा है, यहां से यहां गिर, यहां पर वेलोसिटी है v और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, दैट x। So ultimately the v square is equal to 2gx. So this particular point, say 1, put the value of this in equation number 2. The total energy at b will be mgh minus x plus half m v square का वैल्यू 2gx, 2 cancel, यहां पर क्या आया m इंटू जी इंटू एच माइनस m इंटू जी इंटू एक्स प्लस m जी एक्स, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा m इंटू जी इंटू एच, टोटल एनर्जी एट b। ठीक है, टोटल एनर्जी एट सी, ए पर निकाल दिया, बी पर निकाल दिया, अब सी, टोटल एनर्जी एट सी, वही पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ना पोटेंशियल एनर्जी यहां पर देखिए सी जस्ट अबव द ग्राउंड, यहां पर h क्या होगा 0, एंड h बिकम्स 0 अप्रॉक्सीमेटली जस्ट अबव द ग्राउंड, अप्रॉक्सीमेटली 0। सो पोटेंशियल एनर्जी वैनिशेस, यहां नहीं रहेगा, 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर मान लेते हैं हम v1 उसका स्पीड है v1, तो v1 स्क्वायर। अब v1 का वैल्यू निकालेंगे उसी फॉर्मूला से, v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहां पर डिस्टेंस h ट्रैवल किया तो v1 स्क्वायर u0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, माइनस 0 इज इक्वल टू 2gh, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, इसको दे दिए नंबर 2। अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट किया, किसमें ये इक्वेशन मान लेते हैं हम 3 से, तो इक्वेशन 3 बिकम्स 3 क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर का वैल्यू आप पुट करेंगे, तो टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर इज 2gh, 2 कैंसिल, अल्टीमेटली इट इज m into g into h, total energy at C। अब हम लोग क्या देखें यहां पर,
यहाँ पर टोटल एनर्जी, यहाँ पर टोटल एनर्जी, यहाँ पर टोटल एनर्जी is constant. Means at A, total energy at A is equal to total energy at B is equal to total energy at C is equal to कितना था mgh आया. So as the energy is constant at all the 3 point of the position, so we can say energy is conserved. Energy is conserved. That proves the law of conservation of energy for the falling object, right? So in case of the law of conservation of energy, how you are going to prove it? This is the way of the falling object. A or B, C, 3 position लिए. A पर total energy निकाले, B पर total energy निकाले, C पर क्या हम total energy निकाले. Total energy means kinetic energy plus potential energy. उसी हिसाब से निकाल के अल्टीमेटली मेरा क्या आया, ए पोजीशन में, बी पोजीशन में, सी पोजीशन में व्हाट वी गॉट द टोटल एनर्जी इज सेम और कांस्टेंट. दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. द वन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम. Most of you have seen the simple pendulum also. In case of simple pendulum, what happens? Here, if this is the reference point, this is the ball, or you can say the ball, simple pendulum. When it is start oscillating, if it is a reference point, here this particular height is h. So what we are going to see, here the maximum potential energy is there, and then that potential energy is converting into the kinetic energy. Here the kinetic energy is maximum, and here the potential energy is maximum. Again potential energy converts into the kinetic energy into potential energy, potential to kinetic. So here potential energy converts into the kinetic, and kinetic converts into the potential converts into the kinetic. Means oscillation of the energy is there. A oscillation of the energy. Height है तो potential energy है, potential maximum, वो potential energy धीरे धीरे reduce होके यहाँ पर वो reduce हो गया क्या, potential energy convert हो रहा है इसमें kinetic energy, यहाँ पर kinetic energy maximum, फिर kinetic energy reduce हो रहा है, अब वो convert हो रहा है potential energy, फिर यहाँ पर ये maximum potential energy हो गया. This is a very good example of the conservation of energy. Now comes to a point. One more topic is there in your text. That is the last topic is the power. Rate of doing work is the power. Power what? Rate of doing work. Doing work. हम काम कर रहे हैं, किस रेट से काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं पावर. तो पावर इज इक्वल टू हम काम कर रहे हैं वर्क डन बाय टाइम. दैट इज योर पावर. वर्क डन बाय टाइम. इसका यूनिट क्या होगा? वर्क डन का यूनिट जूल. टाइम का हो गया सेकंड. सो 1 जूल बाय 1 सेकंड इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं 1 वाट. Watt is ऐसा यूनिट ऑफ पावर. So 1 watt is what? 1 watt is that power which a machine or any physical means or a machine performing 1 joule of work in 1 second. Then we can say that machine is having 1 watt of power. So bigger unit is also there. Kilowatt, megawatt, that bigger units are there. One commercial unit is there of power, that HP, horsepower. अगर आप पंप या कोई ऐसी मशीन लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो आपसे पूछेगा पंप, सबमर्सिबल अगर पंप है तो पूछेगा कि कितना एचपी का, वो वही एचपी यहाँ पर, एचपी मीन्स हॉर्स पावर. दैट इज कॉमर्शियल यूनिट. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. 746 वाट ये होता है पावर. अब पावर का
यहां पर देखिए पावर का अगर हम लोग थोड़ा सा और एक्सपैंड करें पावर को, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम है। वर्क डन अगर हम F इंटू एस से डिनोट कर रहे हैं बाई टाइम, S फोर्स एंड S इज योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज योर वेलोसिटी, so S into velocity. So power we can also write force into velocity is also the power. अब इसमें यहाँ पर आप लोग की बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन वगैरह दिया जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है, W by T। अगर W का वैल्यू निकालना है पावर इनटू टाइम, दैट इज योर वर्क डन। दिस वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम। अगर हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, तो भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। अगर पावर मालूम है, टाइम मालूम है, तो हम लोग कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं एक आपके पास बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है और वो 24 आवर्स ऑन रहता है। तो एक दिन में 1 डे का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है वो निकालना है। एक बल्ब है 60 वाट पावर का, वो 24 आवर्स तक ऑन रहता है, तो एक दिन में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? बस यही बेसिक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यही वाला फॉर्मूला। अब फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम या यही चीज W है, पावर इनटू टाइम। पावर कितना 60 वाट इनटू टाइम, यहां पर दिया 24 आवर्स। आवर इज नॉट द ऐसा यूनिट, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इन सेकंड। तो 24 एक घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600, कितना सेकंड, कितना? इसको कैलकुलेट करके 60 इंटू 24 इंटू 3600 इतना वाट सेकंड है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5184,000, इतना वाट सेकंड। अगर हम लोग ये तो हुआ इतना वाट सेकंड हम कन्वर्ट करें। अब यहां पर कॉमर्शियल अगर BSEB या झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉमर्शियल यूनिट होता है, एक कॉमर्शियल यूनिट जो आपका झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बिल आता है, इतना यूनिट, मिस्टर एक्स कंज्यूम इतना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यूनिट में रहता है, यूनिट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। यूनिट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ये आप याद रखना। इसी केस में यही वाला केस में अगर आपको वाट आवर निकालना होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 वाट इंटू 24, इतना वाट आवर। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 60 इंटू 24 बाई 1000 कर देंगे। क्यों? किलोवाट आवर के लिए, किलोवाट आवर में निकालना है 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा कैलकुलेट करके आएगा किलोवाट आवर। मींस यही हो गया इतना यूनिट, इसी को बोलते हैं क्या? यूनिट। तो जितना जो रेट होगा उस रेट से आपको पे करना होगा। जैसे मान लेते हैं 1 यूनिट का 4 रुपीज है या 6 रुपीज है, तो हम जितना ये कैलकुलेट करके आएगा उतना इंटू 4,
उतना दैट अमाउंट यू हैव टू पे टू द जीएसए। तो हम लोग कैसे यूनिट के फॉर्म में निकालते हैं कॉमर्शियल यूनिट। So one unit is equal to 1 kilowatt hour. That is the what? That is the commercial unit of electrical energy consumed. Remember, ये पावर का यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे फैन चला रहे हैं या टीवी है, फ्रिज है, जो भी है, दैट इज योर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। So there are simple numericals, like for example, you try some numericals like what should be the power of an engine required. Note down, what should be the power of an engine required to lift 90 metric tons of coal per hour from a mine whose depth is 200 meters. What should be the power of an engine required to lift 90 metric ton? 90 metric ton. 1 metric ton is equal to 100 kg. 1000 kg. 1 metric ton means 1000 kg. तो हम लोग कैसे पावर निकालेंगे? What should be the power? वही इसी क्वेश्चन में पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। यहां पर हम लोग वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh। यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, m into g into h by 2। तो उस तरह से करके इसको सॉल्व कर लो। टेक अनदर क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate the unit of energy consumed in 1 day by the bulb. अभी ये बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको 60 वाट पावर का है, इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। एक दिन में 6 घंटा यूज होता है। हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे बाय द बल्ब। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। यही हमको समझना कैसे हम ये करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इस चैप्टर का समरी में आते हैं। इस चैप्टर में क्या वर्क डन, फॉर टाइप्स ऑफ द वर्क डन, देन फॉर्मुलेशन ऑफ द वर्क डन, देन कम्स टू द एनर्जी, मीनिंग ऑफ द एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल, and then conservation of energy, law of conservation of energy, proof of the conservation of energy, then comes to the examples of the conservation of energy, and then the power and electrical energy consumed. Okay, practice properly at home. Okay, thank you.